ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਬੇਟੀ ਜੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਵੱਧਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਨਾ ਤੂੰ ਭਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ੌਹਰ, ਨਾ ਮੰਗੇਤਰ, ਨਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜਿਦ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸਣੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੈਵੈਂਟ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਦੋਂ ਗਏ 6 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਈ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਏ ਵੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਨੀਆ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਆ? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ? ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਜਾਣੇ ਕੱਲ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਿਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਨਾ। ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅਜੀ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਘਰ ਬੂਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਘਰ ਪਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ। ਸਭ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜਿਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਜਿਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ?
ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। इसने पहले उसको रख तो लिया अपने साथ, इसके हर किस्म के उसके साथ रिलेशंस थे, उसको यूज़ भी करता रहा। और बीबी के सामने? और बीबी जो है वो दूसरे कमरे में है और ये उसको साथ दूसरे कमरे में होता था। कितना अरसा ये चलता रहा? तो ये तकरीबन पिछले कोई 1 साल से चल रहा था। और बीबी खामोश है? बीबी खामोश है। जो साजिद है इसको खुद से ये महसूस होना शुरू हुआ कि मैं 2 के खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सिम में फ़रोख्त करने का काम भी वो कहते हैं जी आजकल वो डाउन हुआ था, और ये इसके बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करती थी, घर वालों के लिए भी करती थी, अपने लिए भी करती थी। तो इसकी डिमांड से तंग आकर मुझे इससे जान छुड़ाना पड़ी। तौबा इस्तग़फ़ार, इस किस्म के मसाइल अब तो आ जाते हैं कि पता लगता है जी बेटी अनमेरिड थी और अब वो प्रेग्नेंट होकर घर आई है। वालिदैन की नेग्लिजेंसी तो है। वालिदैन ने कोई पूछगिछ नहीं की। वो वालिदैन को इस तरह सेटिस्फाई किया करती थी कि जी जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन फिर मुझे वहाँ ठहरना पड़ जाता है ऑफिस में और दिस एंड दैट। तो ये तो पता था कि सिमो का काम करती है किसी लड़के के साथ, वो लड़का रहता कहाँ है, वेयर अबाउट्स उसके इनको नहीं पता थे। एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि एक सानिया नाम की लड़की जिसका निक नेम है सिमो वाली, इसकी लाश मिली है। कहाँ से मिली, किसने कत्ल किया, माजरा क्या है? पुलिस के पास केस पहुंचा और पुलिस ने इस केस में कितने दिनों में कितना काम किया और मुल्ज़िमान जिनको गिरफ्तार किया, तफ्तीश में क्या खुला, इस हवाले से मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मौज़म साहब जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन हैं। अपनी टीम के हमरा ड्यूटी लगाई, एक्शन लिया, रिपोर्ट तलब की, क्या निकला ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौज़म साहब, सानिया सिमो वाली मर्डर हो गई, ये खबर पुलिस के पास बज़रिया 15 आई या कंप्लेनेंट आई? ये हमारे पास खबर इस तरह से आई जी कि पहले रिपोर्ट हुआ ये केस हमारे पास कि बच्ची जो है वो लापता हो गई है। ये जो सिमो वाली बच्ची है ये जाती होती थी, एक इसका पार्टनर था जिसके साथ ये मिल के काम करती होती थी, सिमें बेचती थी, उसका नाम साजिद है। ठीक है। तो वो उसके साथ जाया करती थी, पहले भी कोई 1-2 दिन घर से बाहर रह के फिर वापस आ जाया करती थी। तो इस दफ़ा जब वो गई 5-6 दिन घर वापस नहीं आई तो फिर इसके घर वालों ने इसके मुतल्लक थाना में इतला दी और उस पर FIR हुई 365B की, और वहाँ से फिर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। बिल्कुल ठीक है। मौज़म साहब, पहले भी 1-2 दिन जाती थी, रहती थी और फिर आ जाती थी। आपके मुतालिक फील्ड में ये कहा जाता है कि आप बाकायदा तय तक जाके चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। लड़की का 1 से 2 दिन घर से बाहर रहने का बहुत बड़ा मतलब होता है, तो तब वालिदैन ने कोई पूछगिछ नहीं की, रोका नहीं? तब वालिदैन ने कोई पूछगिछ नहीं की। वो वालिदैन को इस तरह सेटिस्फाई किया करती थी कि जी जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन फिर मुझे वहाँ ठहरना पड़ जाता है ऑफिस में और दिस एंड दैट। तो वो चूँकि जो वालिद और वालदा हैं वो भी घर से बाहर, वालदा लोगों के घरों में काम करती है, वालिद जो है वो कहीं झूले शूले बनाए हुए हैं वो लेके चला जाता है। तो वो अक्सर व बेशतर वालिद भी घर पर नहीं होता, जिसकी वजह से वो चेकिंग नहीं हो पाती थी प्रॉपर। ठीक हो गया। अगवा हुई, ये पर्चा दर्ज हुआ, जबकि ये घर से तो खुद गई थी और दोबारा नहीं आई है। कितने दिन के बाद ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि भाई लाश मिल गई? अब ये हुआ कि जब FIR दर्ज हुई तो हमने वहाँ पे लोकल कैमरा जात उस इलाके के जो थे वहाँ से जो हमें कोई कैमरा मिला उसमें सिर्फ इतनी बात ही आई कि जी वो अपनी जिस तरह से पहले रूटीन में वो आती जाती है उस तरह रूटीन में वो कहीं जा रही है, और एक ख़ास पॉइंट तक जाके फिर आगे हमें कैमरों से भी हेल्प नहीं मिली, अकेली वो गई है। तो उसके बाद हमने जो वालदा है, वालिद है, इनको बार बार पूछा, उन्हीं से ज़ाहिर पूछ सकते थे कि आगे वो ये तो पता था कि सिमो का काम करती है किसी लड़के के साथ, वो लड़का रहता कहाँ है, वेयर अबाउट्स उसके इनको नहीं पता थे। तो इसलिए वो आगे लड़का जो है उसका नंबर भी नहीं था, इसका अपना भी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं चल रहा था कि जिससे हमें कोई इसमें हेल्प मिल जाती और हम इस तक पहुंच जाते। वो फिर आगे जाके ब्रेक इस तरह से हुआ कि इन्होंने घर से फ़ोन करके बताया IO को कि जी हमें किसी साजिद नाम के लड़के ने फ़ोन करके कहा है कि जी आपकी जो बेटी है वो गिर गई है कहीं, उसको चोट लगी है और चोट लगने से वो काफ़ी ज़ख्मी है। पहले ज़ख्मी बताया उन्होंने, फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बताया कि जी वो हमें बताया गया है कि हमारी बेटी की डेथ हो गई है, तो हम उसकी डेड बॉडी लेने जा रहे हैं।
साजिद ने कॉल किया है। साजिद ने उनको कॉल की। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। चूंकि हमारे पास केस ऑलरेडी रजिस्टर था, तो जो हमारा आईओ है वो खुद से पहले पहुंच गया उनसे, वो सब्जाजार के इलाके में जहाँ कहीं उसने बताया कि इस जगह पे हम मौजूद हैं इस वक्त, वहाँ पुलिस गई। पुलिस ने जाके अपने एंगल से उसको देखा, उसने तो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है जी गिर गई है वाशरूम में, इसमें सर में चोट आई है और उस वजह से इसकी डेथ हो गई है। ठीक लेकिन है। वो चोटें चूँकि ज़्यादा थी उसके जिस्म के ऊपर, तो हमने फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका पोस्टमार्टम करवाया, और जब उसका पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें ये डिटरमिन हुआ कि इसके बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके इसको मारा गया है। बिल्कुल ठीक है। ये कहीं पर गिर गई है, इससे क्या मुराद है? बाहर घर से या घर के अंदर? घर के अंदर वॉशरूम में, अच्छा, ये सब्जाजार के इलाका में रहते थे? सब्जाजार के इलाके में। लेकिन केस तो रायवेंट का केस है ना? रायवेंट में रजिस्टर था, और ये जो इंसिडेंट हुआ इसको मारे जाने वाला वो सब्जाजार में। ठीक है। पुलिस जब किसी भी लाश को देखती है या वकुआ को देखती है, मौके से बहुत कुछ मिल जाता है, और एक अच्छा जो ऑफिसर होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, 70-80% केस समझ आ जाती है। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स, मसाइल और तमाम चीज़ों को तरतीब दे के एक चीज़ रखनी होती है, तो उसके लिए टाइम लग जाता है। इस केस में डेड बॉडी को देखा गया तो ऑब्वियसली समझ आ गई होगी कि तशद्दुद किया गया, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। Yes. लेकिन मजबूर हैं, कानून ने ही हाथ बांधे होते हैं, कहा नहीं जा सकता सिचुएशन के मुताबिक। Yes. क्या कुछ डेड बॉडी पर पाया? चेहरे पर भी निशानात थे? के सर उसका जो है वो फटा हुआ था, सर के ऊपर एक से ज़्यादा ज़ख्म थे, उसके बाद उसके गर्दन के ऊपर भी ज़ख्म थे। सही है। और बाकी जो बॉडी थी वो तो ज़ाहिर है पहले वो खातून थी, वो डॉक्टर ने देखनी थी या वो दूसरे लोगों ने देखनी थी, तो फिर वो दौरान पोस्टमार्टम पता चला कि उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी निशान है।